ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری جڑوا بہن ڈاکٹر تھی اور سب کا مفت علاج کرتی تھی۔ اس کے ہسپتال میں ہر وقت اتنا رش ہوتا کہ وہ کئی دن تک گھر نہ آتی۔ اماں جب بھی اس کا رشتہ کرتی تو لوگ ہسپتال کا نام سن کے فوراً ہی رشتے سے منع کر دیتے۔ ایک دن اماں نے زبردستی بہن کو گھر بٹھا لیا کیونکہ رشتے والے آ رہے تھے اور بہن کی جگہ مجھے ہسپتال بھیج دیا۔ میں جیسے ہی بہن کے کیبن میں بیٹھی، کچھ دیر بعد نرس میرے پاس آئے، لیکن اگلے لمحے میں چیختے ہسپتال سے باہر بھاگی کیونکہ میرا نام ایمان ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ ہم 2 جڑواں بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت پیار تھا، ایک دوسرے کی کبھی کوئی بات رد نہ کرتی تھیں، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ہم دونوں کی ہر چیز ایک جیسی ہوتی تھی، ہم دونوں ایک ہی جگہ پر پڑھتی تھیں۔ میں ویسے سادہ پڑھ رہی تھی لیکن وہ میڈیکل کرنے کی ضد کر رہی تھی، لیکن اماں اس سے منع کر رہی تھی، مگر وہ کہتی تھی آگے اس نے میڈیکل میں ہی جانا ہے۔ نہ جانے اسے کیا تھا، وہ مجھے کہنے لگی اسے شوق ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بھی میڈیکل ہی کر لیتی ہوں۔ آخر ہم نے اماں کو منا لیا اور میڈیکل میں ہی داخلہ لے لیا۔ میں کچھ دنوں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، وہ مجھے ہر وقت پریشان لگتی، جیسے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہو۔ میں اس سے پوچھنے کی بھی کوشش کرتی مگر وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں آئی تو وہ کسی کے ساتھ کال پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک دم سے اپنا موبائل کان سے ہٹایا اور گھبرا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا تھا، وہ اتنا گھبرا کیوں رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نے اسے کہا کہ کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ مجھے کہنے لگی میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کون سی؟ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہی ہے میری ایک ہی دوست ہے۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا تم نے ابھی تک اس دوست کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے؟ میری بات سن کے وہ کہنے لگی تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، میری وہ دوست ہے، میں اس سے نہیں چھوڑ سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ مجھے کہنے لگی سب کو مجھ سے کیا ہے، کیوں تم اپنی مرضی کی مالک ہو، لیکن جانتی ہو نا کہ اماں نے کیا کہا تھا، تم اس دوست سے رابطہ نہیں کرو گی، پھر بھی تم نے اس سے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے اس سے کہا اور وہ مجھے کہنے لگی تم اماں کو مت بتانا نا کہ میں نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے غصے میں کہا تمہاری وجہ سے میں اماں سے جھوٹ نہیں بول سکتی، اگر کل کو اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا رابطہ ہے اپنی دوست کے ساتھ تو میں کیا بتاؤں گی کہ تم نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے۔ ہم دونوں میں ابھی خاصی بحث ہو گئی لیکن وہ بھی نہ مانی، وہ تو آج ضد پر اٹکی ہوئی تھی۔ پہلے بھی وہ ضد کرتی تھی مگر آج تو اس نے حد پار کی ہوئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اس سے کیا کہوں۔ میں نے اس سے کہا اچھا تم ایک کام کرو، اماں کو جا کر بتا دو تم اس لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں توڑ سکتی۔ میری بات سن کے اس نے ایک دم سے غصہ کیا۔ وہ مجھے غصے میں کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اگر اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں ہی بات کر لوں گی، اگر اماں نے تم سے پوچھا تو تم کہہ دینا کہ اس کا رابطہ نہیں ہے، اس سے تمہارا کیا چلا جائے گا۔ اس نے بہت ہی غصے میں مجھے کہا اور مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن میں نے پھر اس سے کچھ نہ کہا۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ اب اس کمرے میں سے میں باہر آ گئی لیکن وہ مجھے پریشان بھی لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی تھی، کچھ تو تھا۔ اگلے دن میں نے اس سے کالج جانے کے لیے اٹھایا، وہ مجھے کہنے لگی مجھے نہیں جانا۔ میں نے بھی حیرت سے کہا کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں حیران ہو گئی، وہ تو کتنی بھی بیمار ہوتی تھی چھٹی نہیں کرتی تھی اور آج نہ جانے اس سے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا اگر تم نے نہیں جانا تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی تم نے کیوں نہیں جانا؟ مجھے حیرت ہونے لگ گئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، تم نہیں آنا چاہتی تو نہ آؤ، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو ڈاکٹر نہیں بن سکو گی۔ وہ مجھے کہنے لگی وہ میرا کام ہے ڈاکٹر بننا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، آج کل وہ کیسے مجھ سے بات کر رہی تھی، مجھے تو اس کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کالج آ گئی لیکن مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ اس نے چھٹی کیوں کی تھی، آخر کیا مسئلہ تھا۔ میں وہیں پر کالج میں کلاس ختم ہونے کے بعد بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک لڑکی آئی اور مجھے کہنے لگی تمہیں اپنی دوست کا کچھ پتہ ہے، کتنی بری نکلی ہے وہ۔ میں نے اسے کہا وہ میری نہیں میری بہن کی دوست تھی۔ وہ ایک دم سے ہنستے ہوئے کہنے لگی تم دونوں کا پتہ نہیں چلتا کہ آج وہ کہاں ہے، تمہاری بہن، وہ بھی اپنی دوست کی طرح تو نہیں نکلی۔ میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا اور غصے میں کہا اپنی بکواس بند کرو، کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ وہ مجھے کہنے لگی سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بدنامی کے بعد بھی اس لڑکی نے میری بہن سے دوستی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے تو بس ایک ہی ڈر لگا رہتا تھا، کل کو کوئی میری بہن کے بارے میں کچھ نہ بولے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، کوئی میری بہن کے بارے میں کچھ کہتا، لیکن اس کی دوست کی وجہ سے اب سب میری بہن کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے
और मैं परेशान हो गई थी क्योंकि मैं नहीं सुन सकती थी अपनी बहन के बारे में कोई भी बात। मैंने गहरी सांस ली और वहाँ से उठ गई। मुझे न जाने कितनी लड़कियाँ ऐसा कह चुकी थी। अब तो मुझे समझ आ गई थी कि वो क्यों नहीं कॉलेज आ रही थी। शायद वो इन बातों की वजह से नहीं आ रही थी जो मुझे सुननी पड़ रही थी। मैं कॉलेज से आधी छुट्टी लेकर घर आ गई। जब मैं घर आई तो अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? और सुबह बहन को साथ कॉलेज क्यों नहीं लेकर गई? वो बाद में कॉलेज गई है। मैं हैरत से अम्मा की तरफ देखने लगी। अम्मा मुझे कहने लगी, वो कहाँ है? और मुझे लग रहा था किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। वो तो क्या, इसका साया भी मैंने कॉलेज में नहीं देखा था। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा कि वो कॉलेज में ही थी। मेरी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से मैं घर आ गई हूँ। मैंने अम्मा से झूठ तो कह दिया था, लेकिन मुझे बहुत परेशानी बन गई थी कि वो कहाँ चली गई थी। मैं कमरे में आई, देखा तो इसका मोबाइल भी नहीं पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल से उसे कॉल की। वो तो शुक्र है उसने फ़ौरन से ही कॉल पिक कर ली। जैसे ही उसने कॉल पिक की, मैंने गुस्से में कहा, कहाँ मर गई हो? अम्मा को क्या तुम बकवास करके गई हो कि तुम कॉलेज जा रही हो? कॉलेज में तो तुम्हारा नाम तक नहीं था। कहाँ हो तुम? मैंने गुस्से में पूछा तो वो मुझे कहने लगी, गुस्सा क्यों कर रही हो? इसकी बात सुन के मैंने कहा, तो फिर और क्या करूं? गुस्सा नहीं करूं तो मुझे बताओ कहाँ हो? वो मुझे कहने लगी, मैं अपनी दोस्त के पास आई हूँ। इसकी बात सुन के मैंने गुस्से में कहा, तुम भी मर जाओ अपनी दोस्त के साथ। इस कदर जलील किया हुआ है तुमने मुझे। अम्मा के सामने झूठ मैं बोल रही हूँ और आवारागर्दी तुम कर रही हो। मैंने गुस्से में उसे अच्छी खासी बातें सुना दी क्योंकि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो हंसती हुई कहने लगी, जितनी बातें सुनानी है सुना लो, लेकिन बस अम्मा को मत बताना। मैं कॉलेज की छुट्टी के वक्त आ जाऊंगी। उसने ये कहकर कॉल कट कर दी। मेरी पेशानी पर पसीना आया हुआ था। वो लड़की जो हर जगह बदनाम थी, न जाने मेरी बहन को इसमें क्या ऐसा नजर आता था जो वो बार बार उसके पास जाती थी। पहले मेरी बहन भी उसके पास इतना नहीं जाती थी, इतनी अच्छी दोस्त भी नहीं थी, लेकिन जब से उसकी बातें खुली थी तब से मेरी बहन उसके साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गई थी। मैं हैरान परेशान सी यही सोच रही थी कि अब कैसे उसे समझाऊं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। मैंने गहरी सांस ली और वहीं बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपनी बहन को समझाना चाहिए। उसे क्या पता था लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे थे और उसे किसी चीज़ की कोई फिक्र ही ना थी। मैंने भी अब सोच लिया था, कुछ दिन देखती हूँ कि क्या करती है। छुट्टी के वक्त वो घर आई, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा था। मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और उससे कुछ ना कहा। वो कमरे में आई और कहने लगी, आज गुस्से में लग रही हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो कहने लगी, सब ठीक तो है। मैंने फिर भी कोई जवाब न दिया। मुझे तो लग रहा था उसका दिमाग ही खराब हो गया है। मैंने बस इतना पूछा कि उस दोस्त के पास क्या करने गई थी। वो मुझे कहने लगी, एक दिन आपको भी पता चल जाएगा। अब मैं आ गई हूँ, अब मुझसे इस बारे में कोई सवाल ना करना। नहीं मिलने जाऊँगी आज के बाद। आपको भी बस एक काम कह दूँ, वो होता नहीं आपसे। वो गुस्से में ये कहकर वहाँ से चली गई। बाहर कमरे से मैं नफ़ी में सर हिलाने लग गई। दिन गुजरने लगे। अब जब भी मैं उसे देखती वो किताबों में घुसी होती थी। एक दिन मैंने उससे यूं ही पूछ लिया कि अब तुम इस दोस्त से राब्ता नहीं करती क्या? तो वो एक दिन मुझ पर फट पड़ी और कहने लगी, आप क्या जानती हैं इसके बारे में? उसने किसी लड़के से मोहब्बत की थी, उससे मिलने चाहती थी। इस लड़के ने उसकी तस्वीर नेट पर डाल दी थी। ये वो ऐसी बातें ही जानती है ना, तो बस अब मैं कुछ नहीं कह सकती। लोग इसी पर यकीन रखते हैं जो देखा जाता है। मेहरबानी होगी अब मैं इससे राब्ता नहीं करती तो आप भी इसका जिक्र मेरे सामने मत करना। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मुझे वो इस कदर गुस्से में कहने लगी जैसे न जाने मैंने उससे क्या पूछ लिया हो। मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा, अच्छा गुस्सा मत करो, आज के बाद मैं इसका कोई जिक्र नहीं करूँगी। मैं भी पढ़ाई तो कर रही थी, लेकिन वो हर वक्त ही किताबों में घुसी रहती थी। अब वो मुझे परेशान भी लगती थी। मुझे तो ये पढ़ाई इतनी मुश्किल लग रही थी, मैंने दरमियान में ही छोड़ दी। लेकिन वो मुझे कहती कि उसकी जिद है डॉक्टर बनना। रात के वक्त मैं स्टडी रूम में दाखिल हुई तो मेरा भाई और मेरी बहन आपस में बातें कर रहे थे। मैं वहीं पर रुक गई। भाई कहने लगा, क्या हुआ है, आ जाओ, तुम्हें कुछ बताते हैं। उसने प्यार से कहा तो मेरी बहन उससे मना करने लगी, जैसे वो मुझे बताने से इनकार कर रही हो। पहली बार मुझे दुख हुआ था। मेरी सगी बहन होकर मुझसे बातें छुपा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बातें हो रही थी? मेरी बहन कहने लगी, कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ तो चल रहा था तुम दोनों के दिमाग में। मेरी बहन कहने लगी, बस पढ़ाई ही की बातें कर रहे थे। आप बताएं, आपको कैसे हमारी याद आ गई? मेरी बहन का लहजा तंसिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों करती है। मैंने उससे कहा, चलो अगर तुम कोई बात कर रही थी मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें बोल भी नहीं रही कि मुझे बताओ। मैंने उससे चुप कहा तो वो हैरत से मुझे देखने लग गई। मैं वहाँ से वापस कमरे में आ गई। मुझे दुख हो रहा था कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। क्या कोई बात थी? अगर थी तो मुझे भी बता देते, तो इनका क्या चला जाना था। खैर मुझे उनकी बातें जानने का कोई शौक़ नहीं था।
आजकल मैं देख रही थी मेरे दोनों बहन भाई आपस में बहुत एक दूसरे के करीब हो गए थे। हर वक्त बातें करते रहते थे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था। ये वही भाई था जब कोई बात नहीं सुनता था। अब तो बहन को कॉलेज भी लेकर जाता था, जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी भी लेकर जाता था। मुझे बहुत अजीब लगता था। वो सारा दिन घर में भी नहीं रहता था। पहले तो हर वक्त घर में ही पड़ा रहता था। मैं आज किचन में काम कर रही थी। अम्मा मुझे कहने लगी, आजकल तुम्हें अपना भाई बदला हुआ लग रहा है क्या, या फिर ये मुझे ही लग रहा है? उनकी बात सुन के मैंने कहा, मुझे भी लग रहा है, लगता है अक्ल आ गई है। अम्मा कहने लगी, हाँ तुम ठीक कह रही हो। मैंने गहरी सांस ली। अम्मा मुझे कहने लगी, तुम्हारी बहन तो डॉक्टर बनकर ही रहेगी। अम्मा की बात सुन के मैं मुस्कुरा दी और कहा, अब जल्दी से बन भी जाए, अगर ना बनी तो अलग से हम पर मुसीबत होगी। जिस तरह वो डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही है। अम्मा मुझे कहने लगी, तुम नहीं बन सकी तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भी नहीं बन सकेगी। देखना एक दिन वो भी बन जाएगी। अम्मा की बात सुन के मैंने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि वो ना बने डॉक्टर? मेरी तो यही दुआ है कि वो जल्दी डॉक्टर बन जाए। अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन मुझे बस अजीब ही लग रहा था। इसके दिमाग में क्या चल रहा था? इतने साल हो गए थे, उसने अपनी दोस्त से राब्ता भी नहीं किया था। लेकिन अब मुझे क्या मालूम था कि वो राब्ता करती है कि नहीं करती। लेकिन कभी मेरे सामने उसने जिक्र नहीं किया था। रात के वक्त सब बैठकर खाना खा रहे थे। मैं बस अपने ही ख्यालों में गुम थी। मेरी बहन मुझे कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? आगे पढ़ ही लो, घर में बैठ बैठ कर बोर हो जाओगी। अम्मा कहने लगी, अब आगे क्या पढ़कर करना है? अब इसकी और अपने बेटे की शादी कर दूंगी, बाद में फिर तुम्हारी शादी करूंगी। शादी की बात पर मेरा भाई एकदम से घबरा गया और अपनी पेशानी से पसीना साफ करने लग गया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो दूसरी बहन की तरफ देखने लग गया। न जाने उसे क्या हुआ था। मैंने कहा, क्या हो गया है, ऐसे परेशान क्यों हो गए? वो नफ़ी में सर हिलाने लग गया, लेकिन बार बार दूसरी बहन की तरफ देख रहा था कि जाने क्या हुआ था दोनों को। अम्मा कहने लगी, सारे खामोश क्यों हो गए हो? मैंने कहा, आपके दोनों बच्चों को ही सांप सूख गया है। मैंने ये कहा और वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गई। इतने में मेरी बहन भी आ गई। मैंने उससे कहा, ये हमारा भाई शादी के नाम पर इतना घबरा क्यों गया था? वो कहने लगी, इसको पता है। मुझे क्या पता, कल मेरा ज़रूरी टेस्ट है, मुझे पढ़ने दो। वो ये कहकर किताबें लेकर बैठ गई। मैं काफ़ी देर उसके पास बैठी रही। मुझे लग रहा था वो मुझसे कोई बात करेगी, लेकिन उसने कोई बात न की मुझसे। मैंने उससे कहा कि मुझसे नाराज़ हो क्या? कोई बात की है मैंने? उसका रवैया देख रही थी मैं कुछ दिनों से। वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं तुम मुझसे नाराज़ हो, पहले की तरह बात भी नहीं करती, बहुत ही बदल गई हो मेरे साथ। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे कहा तो वो हंसती हुई कहने लगी, क्यों बोल रही हो ऐसे? मैं बहन हूँ तुम्हारी, मैंने क्यों नाराज़ होना है तुमसे? मैंने गहरी सांस लेकर उसको कहा कि इसकी वजह यह है कि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती। मैं तुम्हारी दोस्त के साथ बातें करने पर एतराज़ करती थी। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और कहने लगी, यार वो बात पुरानी है, वो बस मेरी दोस्त ही रहेगी, ओके? मैंने उससे कहा कि वो लड़की अच्छी नहीं थी, तुम जानती हो ना इसके बारे में लोग क्या बातें करते थे। मुझे डर लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में भी ऐसा कुछ ना बोलें। इस वजह से तो मैं कहती थी कि उससे दूर रहो, वरना मुझे क्या फ़र्क था तुम दोनों की दोस्ती से। मैंने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की थी। वो मुझे कहने लगी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बेहतर होगा तुम भी ना करो। बस ये बात गुजर गई ना, मुझे इस बारे में ना बात करनी है ना तुम करो। अब मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है और मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ है। तो वैसे भी इस बात को सालों गुजर गए हैं, मैंने जिक्र करना छोड़ दिया है, तुम भी भूल जाओ। और पहले की तरह जो मैं बात नहीं करती तो इस वजह से मेरी मसरूफियात हैं, मैं मसरूफ़ रहती हूँ, इस वजह से बात नहीं करती और कोई वजह नहीं, क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। मैंने उसकी बात सुन के इस बात में सर हिला दिया और बाहर आ गई। न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी मुझे तो यूं लग रहा था मैंने जैसे पागल हो जाना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्यों इतनी परेशान रहने लग गई थी। अब तो अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। फिर मेरी एक जगह मंगनी हो गई, लेकिन अम्मा साथ ही दूसरी बहन का करना चाहती थी, मगर वो थी कि अभी तक शादी करने को तैयार न थी। जब भी अम्मा उससे शादी की बातें करती तो वो बात को ही बदल देती। और मेरा भाई भी शादी करने को तैयार नहीं था। हर वक्त घर से बाहर रहता था, रात को भी देर से आता था, कभी कभी तो आता भी नहीं था। जब अम्मा कुछ कहने लगती तो दूसरी बहन इसकी साइड ले लेती थी। वो किसी को कुछ कहने नहीं देती थी। वक्त गुजरता गया, आखिर वो डॉक्टर बन गई। जब वो डॉक्टर बन गई तो साथ ही उसने अपना अस्पताल खोल लिया। पहले फिर भी वो दिन को घर आ जाती थी, लेकिन जब से उसने अस्पताल बनाया था तब से वो रात को ही घर आती थी। एक दिन मैंने यूं ही उससे पूछा कि तुम्हारे अस्पताल में इतना रश कैसे होता है? यहाँ पर तो इतने पुराने पुराने अस्पताल हैं, वहाँ पर इतना रश नहीं होता।
तो फिर तुम्हारे अस्पताल में कैसे होता है? वो मुझे कहने लगी, मैं फ्री में इलाज करती हूँ, इस वजह से लोग इतने ज़्यादा आते हैं। मुझे हैरत हुई कि वो फ्री इलाज करती थी और आज बता रही थी। वो मुझे कहने लगी, अम्मा को इस बात का पता है और अम्मा बहुत खुश भी हैं। अब तो हर वक्त ही उसका अस्पताल जाना लगा रहता था। मैं सारा दिन घर में अकेली बोर होती रहती थी, कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। अब अम्मा ने सोच लिया था कि साथ उसका भी रिश्ता कर देंगी, क्योंकि अब हमारी शादी की उम्र भी हो गई थी। लेकिन वो बात को गोलमोल कर देती और कह देती थी, मैं भी शादी नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, इस तरह की बातें करती रहती थी। लेकिन अम्मा ने एक रिश्ता ढूंढा था। रात को अम्मा ने उससे कहा कि तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। वो हैरानगी से कहने लगी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मा कहने लगी उससे कि मैंने तो कब का तुम्हें बताया हुआ है, जब भी कोई अच्छा रिश्ता मिला मैंने कर देनी है शादी तुम्हारी। वो मुझे कहने लगी, अच्छा तो फिर कल खुद ही आप लोग हैंडल कर लेना, क्योंकि मैंने तो कल मसरूफ़ होना है, मैं तो घर नहीं आ सकूंगी, मैं अभी बता रही हूँ। इसकी बात सुन के अम्मा गुस्से में कहने लगी, तुमने कल घर आना है? वो कहने लगी, ठीक है देखूंगी। वो ये कहकर उठकर कमरे में चली गई। मैं अम्मा की तरफ देखकर कहने लगी, आपको एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था, उन्हें बुलाने से पहले। अम्मा कहने लगी, मैं कितनी बार इससे पूछूं? मैं तो जब भी इससे पूछूंगी उसने यही कहना है कि मैंने नहीं करनी शादी। न जाने उससे क्या हो गया है, तुम ही कुछ समझाओ, मैं तो पछता रही हूँ इसे डॉक्टर बनाकर। मैंने कहा, अम्मा मैं करूँगी उससे बात। मैं ये कहकर कमरे में आ गई। वो लैपटॉप में लगी हुई थी। मैं उसके पास आकर बैठ गई और उससे कहा, क्यों अम्मा को तंग कर रही हो? तुम जानती हो अम्मा ने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, अब तुम उनकी ही बात नहीं मान रही हो, ये तुम कितनी गलत बात करती हो। मेरी बात सुन के वो कहने लगी, यार बस करो, पहले ही मेरा दिमाग फट रहा है सोच सोच के। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा कि क्यों, तुम क्या सोच रही हो जो तुम्हारा दिमाग फट रहा है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी, मैं भला क्या सोच सकती हूँ, बस अस्पताल के बारे में सोच रही हूँ, रोज़ वहाँ पर इतने सारे मरीज होते हैं। मैंने उससे कहा, तो तुम अपनी मर्जी से जाती हो, अपनी मर्जी से काम करती हो? वो कहने लगी कि हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, सब कुछ मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, लेकिन एक ये जो अम्मा शादीनामा लेकर बैठ गई हैं, इसका मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, किसी को पसंद करती हो क्या? उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और हंसती हुई कहने लगी, पागल हो क्या, मेरे पास कहाँ इतना वक्त मैं किसी को पसंद करती फिरूँ, तुम भी हद करती हो। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे देखकर हंसती। मैंने कहा, यार अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, बस मैंने वैसे ही पूछा कि किसी को पसंद करती हो तो उसके साथ तुम्हारी शादी कर देते हैं, लेकिन तुम हो कि आगे से मेरी बात का मजाक बना देती हो। अगले दिन उसके रिश्ते वाले आए हुए थे। इसके अस्पताल से आने का वक्त हो गया था और इसके रिश्ते वाले आए हुए बार बार इसका पूछ रहे थे। मैं उसे कॉल कर रही थी मगर वो कॉल भी नहीं पिक कर रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं। मैंने गहरी सांस ली लेकिन वो नहीं आ रही थी। अम्मा ने उन्हें बताया कि मेरी बेटी डॉक्टर है और अस्पताल उसका अपना है तो कभी कभी देर हो जाती है। जब उन्होंने मेरी बहन के बारे में अम्मा से सुना तो वो कहने लगे, हमें आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना। वो ये कहकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद अम्मा को तो बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में कहने लगी, एक बार ये लड़की घर आ जाए मैं फिर इसकी खबर लेती हूँ। मैंने अम्मा को कहा, गुस्सा न करें, शायद कोई ज़रूरी काम हो इस वजह से ना आई हो। अम्मा मुझे गुस्से में कहने लगी, बस कर दो, हर वक्त उसी का साथ देती रहती हो। अम्मा की ये बात तो ठीक थी, मैं हमेशा उसी का साथ देती थी, कभी ये नहीं कहा था कि वो गलत है, हमेशा यही कहती थी कि वही ठीक है। रात को न जाने कौन से पहर वो घर आई तो अम्मा को गुस्से में देखकर आराम से कहने लगी, क्या हुआ है? अम्मा गुस्से में कहने लगी, अभी तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि क्या हुआ है? मैंने बताया भी था कि आज तुम्हारे रिश्ते वालों ने आना है, फिर भी तुम इतनी देर से आई हो। वो कहने लगी, अच्छा चले गए हैं? अम्मा गुस्से में कहने लगी, कुछ शर्म कर लो, अभी तक तुम्हें मजाक सूझ रहा है, दिल कर रहा है मुंह तोड़ दो तुम्हारा, इस कदर लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? अम्मा गुस्से में कहने लगी, लेकिन जैसे ही उससे अब भी परवाह नहीं थी वो आराम से कमरे में चली गई। अम्मा पीछे से उसे बातें सुनाती रही। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में आई, वो बेड पर परेशान सी बैठी हुई थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ है? वो मुझे कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। अम्मा को कैसे समझाऊं कि अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है और मेरी शादी के पीछे पड़ गई हैं वो। मैंने उससे कहा कि ये भी तो अम्मा ने करना ही है, एक दिन तो तुम्हारी शादी करनी ही है, अब ये ड्रामे बंद करो और आराम से शादी के लिए मान जाओ, वरना तुम जानती हो ना अम्मा को मत तंग करो, अब मान जाओ शादी के लिए। वो कहने लगी, हाँ ठीक है, अब जो भी रिश्ते वाला आया मैं खुद आ जाऊंगी घर। बस उसने ये कहा और गुस्से में भाई के कमरे की तरफ चले गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उससे क्या हो गया था, कोई तो बात थी जो वो ऐसे कर रही थी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने अगले दिन भाई को कहा तो वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अम्मा कहने लगी, मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की शादी कर देती हूँ,
मगर भाई कहने लगा वो अभी तक शादी नहीं करना चाहता। मैं हैरान थी कि वो भी शादी नहीं करना चाहता और ये लड़की भी नहीं करना चाहती। आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। अब तो अम्मा हर वक्त गुस्से में रहती थी और मैं अम्मा की वजह से परेशान रहती थी। अम्मा ने अब कह दिया था कि अगर अब भी वो नहीं मानेंगे तो अम्मा उनसे फिर बात नहीं करेंगी। मैंने अम्मा को कहा नहीं मान जाएंगे, लेकिन फिर से उसने वही हरकत की। एक तो इसके रिश्ते वाले उसके अस्पताल का सुनकर ही इनकार कर जाते थे। मुझे यही बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा भी क्या था उसके अस्पताल में जो उसके रिश्ते वाले इनकार कर जाते थे। आज अम्मा ने गुस्से में कहा कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है। मैंने अम्मा को कहा कि इस लड़की को इसके हाल पर छोड़ दे, जैसा कर रही है करने दे। अगर आपकी बात नहीं मान रही तो आप भी छोड़ दें। अब मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि दोनों बहन भाई ऐसा क्यों कर रहे थे। आज फिर उसके रिश्ते वालों ने आना था। वो अस्पताल जाने लगी तो अम्मा ने उसका बाजू पकड़ लिया और कहने लगी कहाँ जा रही हो। वो कहने लगी आज मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं ये कहकर जा रही हूँ तो आ जाऊंगी। अम्मा कहने लगी तुम कहीं नहीं जाओगी। वो कहने लगी मेरा अस्पताल में होना बहुत ज़रूरी है, मेरे बगैर कोई काम नहीं होता अस्पताल में। अम्मा मुझे कहने लगी कि इसकी जगह पर तुम चली जाओ अस्पताल। मैंने हैरत से कहा मैं क्यों चली जाऊं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था कि अस्पताल में क्या काम होता है। अम्मा मुझे कहने लगी कि ये आज कहीं नहीं जाएगी, तुम खुद ही चली जाओ। मैं अम्मा की बात रद्द नहीं कर सकती थी, इस वजह से मैं जाने के लिए मान गई और वो मुझे देखने लग गई और मना करने लगी कि तुम ना जाओ। लेकिन मुझे अम्मा ने कहा था। मैं अस्पताल आ गई। वहाँ पर आकर मैं उसके कैबिन में चली गई जहाँ पर वो बैठी होती थी। मुझे हैरत हो रही थी उसका कैबिन देखकर। वो तो छोटा सा था और मेरी बहन तो अक्सर कई कई दिन इतनी मसरूफ़ होती थी कि घर भी नहीं आ सकती थी। तो क्या वो इस कैबिन में रहती थी? मैं यही देख रही थी कि इतने में एक नर्स कमरे में आई। उसे देखकर मैंने हैरत से कहा कोई काम है? वो मुझे हैरत से देखने लग गई और कहने लगी डॉक्टर साहिबा एक सीरियस केस है, आपको मेरे साथ चलना होगा। इसकी बात सुन के मैंने हैरत से कहा मैं कैसे आऊँ? वो मुझे हैरत से देखकर कहने लगी क्या हो गया है? जैसे पहले आती हैं ऐसे ही आना है। वो मुझे कहने लगी आ जाएं। मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं अपने भारी होते कदम उठाकर कैबिन से बाहर आई। बाहर आकर मैंने इर्द गिर्द देखा। अस्पताल में बहुत सारे लोग थे। वो मुझे एक रूम में लेकर गई। जैसे ही मैं रूम में दाखिल हुई सामने का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं आंखें फाड़े सामने देखने लगी। नर्स मुझे कहने लगी क्या हुआ है? इसकी बात सुन के मैंने कहा कुछ नहीं। वो ये सब कुछ क्या है? मैं एकदम से चीख मारकर वहाँ से बाहर भाग गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे सांस भी नहीं आ रही। जब मैं अस्पताल से निकली तो सामने अचानक एक लड़की आ गई जिससे मेरी टक्कर हो गई। वो मुझे कहने लगी क्या हो गया, इतना घबराई हुई क्यों हो और मेरा शौहर कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा? यार तुम्हारा भाई बहुत ही लापरवाह हो गया है। मैं आंखें फाड़े उसे ही देखने लग गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जो मैं सुन रही थी वो सच था। इसका मतलब था कि आज भी मेरी बहन इस लड़की के साथ राब्ते में है। वो मेरा बाजू पकड़ के अंदर ले गई और मैं उसके साथ चलती गई। अचानक उसका मोबाइल बजा। उसने हैरत से मोबाइल की तरफ देखा जहां मेरी बहन का नंबर जगमगा रहा था। वो आंखें फाड़े कभी मोबाइल को देखती तो कभी मुझे देखती। उसने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ मेरी बहन कहने लगी यार ध्यान से, आज मैं अस्पताल में नहीं हूँ, मेरी बहन अस्पताल में है, ध्यान रखना उसे पता न चले कि तुम भी इसी अस्पताल में हो और मेरी भाभी हो। वो जल्दी में सब कुछ बोल गई और मैं उसके मुंह की तरफ देखने लग गई। मैं पहले ही इस कदर घबराई हुई थी, ऊपर से ये सब बातें सुनकर और भी मेरा बुरा हाल हो गया था। अजीब सी हालत हो रही थी मेरी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कॉल कट हो गई थी और वो मुझे देख रही थी। मैं उसका बाजू पकड़कर कैबिन में लेकर आ गई और उसे पूछने लगी कि क्या है ये सब। वो मुझे कहने लगी एक दिन तो आपको पता चलना ही था, इस वजह से फिर मैं आज आपको बता ही देती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा मुझे समझ रहे थे। वो सब कुछ हमारी एक दोस्त ने किया था। मुझे जलील करने के लिए मेरी झूठी तस्वीर एडिट करके नेट पर डाल दी, जिसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। अगर आपकी बहन ना होती तो कोई भी मुझे ना संभाल सकता, मैं मरने वाली हो गई थी। फिर आपके भाई ने मुझसे निकाह कर लिया। मेरा दोनों ने बहुत ख्याल रखा। अभी आपने देखा होगा अस्पताल में कैसे कैसे केस आते हैं। किसी लड़की के साथ कुछ हुआ होता है तो किसी के साथ कुछ, तो हम इन सब की मदद करते हैं। आपका भाई, मैं और आपकी बहन आज तक मौत के मुंह से निकली हुई लड़की को हमने मरने नहीं दिया। इसकी बात सुन के अभी मुझे इस लड़की का ख्याल आ रहा था जिसके मुंह पर तेजाब गिरा हुआ था, जो मुझसे देखी भी नहीं गई थी। वो लड़की कहने लगी आपकी बहन ऐसे शख्स से शादी करना चाहती है जो इस काम में उसको सपोर्ट करे, उसकी मदद करे, उसे हारने न दे। जैसे आप लोग इसके लिए रिश्ता देखते हैं वो लोग कभी इसको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। आज मुझे अपनी बहन बहुत अच्छी लग रही थी। आज मुझे यकीन हो गया था मेरी बहन जैसा कोई भी नहीं और ना ही हो सकता है। मैंने उससे कहा सॉरी यार, मैंने तुम्हें भी इतना गलत समझा था। मैं मानती हूँ मैं गलत थी बहुत जगह पर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी तुम्हारे बारे में वही सोच रखी जैसे बाकी लोगों ने रखी थी।
وہ مجھے کہنے لگی آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے ایسا کچھ کہا ہے کہ آپ کی غلطی تھی، پلیز آپ معافی مت مانگیں، مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آپ معافی مانگ کر۔ آپ کی بہن جیسی اچھی ہے آپ بھی اچھی ہیں، اگر آپ کی بہن اور بھائی نہ ہوتے تو آج نہ جانے میں کہاں پر ہوتی۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی اور آج بھی رشتے سے انکار ہی ہوا تھا کیونکہ وہ اس کے اسٹینڈرڈ کا لڑکا نہیں تھا۔ اماں اسے ڈانٹ رہی تھیں لیکن میں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ اماں مجھے کہنے لگی چھوڑو اس نالائق کو۔ میں نے اماں کو کہا ایسی بیٹیاں ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ جب میں نے اماں کو سب کچھ بتایا تو اماں بھی بہت خوش ہو گئیں۔ اس کے بعد میری اور میرے بھائی کی اماں نے شادی کر دی اور بعد میں جیسا وہ لڑکا چاہتی تھی ویسا مل گیا اور اس کی بھی شادی ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔